Hi, good evening, everybody. Good evening. Wishing everybody a warm welcome. Good evening, everybody. Hello, Beena. Good evening. Hi, Dhaval. Good evening, Sneh. Pankaj ji. Good evening. Hello, Vishal. I'm good, Dhaval. Hello, Anand ji. Hello, Miloni. Good evening. Dr. Sayed. Good evening. Ranjit ji. Nice to see you. Good evening. Hello, Manish. Hello, Ramesh. How are you? Devesh, Pradyot, Ushma, good evening. Hi, Neeraj. Hello, Dhaval. Most welcome, Dhaval. Nice to see you, Nishad. Dhaval says thank you for day 6. Hello, Sanjeev. Hi, Geeta. Good. Nice to see so many of you. Very nice. Sayog, I'm awesome, man. All good, all good. Good evening, Rajni. We just wait for another 1 minute and then we'll begin. Hello, Shiv Kumar, Lakshmi. Thank you, Beena. Thank you for eagerly waiting for the session. Hello, Abhijit. Glad to see so many of you. Sincere gratitude to each one of you for being here every evening. Hello, Sunil. Sunil Digeji. Yes, Dr. Shahid, I do drink warm water. Hello, Trupti. Pandurangji, good evening. Rupesh ji, namaste. Hi, Ranjan. Hello, Mahesh. Neeraj, Jigna ji. Satish Kumar, Sangeeta ji, wow, nice to see you after a long time. Amit, how are you? Good, thank you so much. I think we have enough people. We have almost about 90 people now, so we can get started. So once again, a very, very warm welcome to day 6. And I am also as eager as all of you waiting for this time in the evening so that I can connect with you once again. And I am so happy, बहुत खुश हूँ मैं कि आप सब लोग हर इवनिंग में आते हो और इस छोटे से हमारे सेशन को ध्यान से सुनते हो और मुझे आशा है कि इन छोटी छोटी टिप्स को आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो या बिकॉज वन इज़ लर्निंग एंड सेकंड इज़ अप्लाइंग. हम कितना भी सीखें लेकिन अगर उसको अप्लाई नहीं करें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट? सो आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, टैपिंग? जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप खाली कमेंट में टाइप करोगे यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, टैपिंग, मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग अप्रिसिएशन, मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग सम अदर थिंग्स, रीडिंग गुड बुक्स.
So whatever activities you are doing, if you can just type a few things, that'll be nice. Hello Anita, Anita ji, Sheetal, Durgesh. Hi Nilesh. Very good Sanjeev ji, gratitude. That is the most powerful exercise, Sanjeev ji. So thank you so much for practicing that. And reading books, awesome, very nice. Anand ji says he's doing tapping. Very good. Vinod says, I practice gratitude. Okay. Good. Excellent. Very good. Beena says gratitude, prayer of mind, and tapping. Okay. Nishad says gratitude, tapping, visualization every morning. Very good. I'm so happy to see that not only are you learning but also you are practicing. And that is the key, because अगर हमारा माइंड जो है ना इतना बंदर है कि अगर आप उसको छोड़ दो तो फिर से नाचना शुरू करेगा. तो हमें क्या करना है, इस माइंड को ट्रेन करना है. जैसे एक बंदर को कैसे हम ट्रेन करते हैं, हमारा माइंड एग्जैक्टली बंदर जैसा है. तो उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है. और उसके ऊपर जब तक हम रोज़ काम ना करें, जब तक कि वो ऑटोमेटिक ना बन जाए, तब तक उसको प्रैक्टिस करते रहना है. कभी कभी 2 महीने लगते हैं, 3 महीने, 6 महीने, लेकिन एक समय आएगा जहाँ पे मन हमेशा शांत रहेगा. Like yesterday, I know, I think Dimple or somebody was asking, sir, how do you stay so calm all the time? How do you stay so happy all the time? The reason is because I'm doing consistent practice, mind power practices. और अभी ये मेरा, जैसे हम कह सकते हैं, स्वभाव बन गया. It's become part of my DNA. It's become part of me. So we need to practice all these mind power techniques on a regular basis, okay? तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे. आशा है कि आप लोग कल थोड़ा सा समय निकाला आपने ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए. ओके, सो नोइंग व्हाट यू वांट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता हमें क्या चाहिए, तो फिर ना तो हमें हमारा जीनी काम मदद कर सकता है, ना तो हमें वो ज़मीन मदद कर सकती है. ज़मीन में कुछ तो बोना पड़ेगा ना, और कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ को वो करके उसको पानी देना पड़ेगा. इफ़ यू कीप चेंजिंग द सीड्स एवरी डे एंड इफ़ यू स्टॉप बिलीविंग इन द सीड्स, तो फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होगा. राइट? मैनिफेस्ट, कोई भी चीज़ को अगर अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है या उसको सच में बदलना है, तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो है अपने वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखना. ओके, तो आज हम थोड़ा सा वाइब्रेशंस के ऊपर बात करेंगे. कल हमने बोला था वाइब्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइब्स? देखो, ये पूरा यूनिवर्स जो है वो क्या है? इट इज़ एनर्जी. राइट? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी. आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हूँ, ये बुक भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है. तो फिर फ़र्क क्या है? अगर सब कुछ एनर्जी है तो फ़र्क क्या है? देखो, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हर चीज़ एनर्जी है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप एक जायंट माइक्रोस्कोप के नीचे रख दो, जैसे बायोलॉजी लैब, आपको याद होगा वहाँ पे माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, याद है? ऐसे हम देखते थे अंदर. तो कोई भी बड़े जायंट माइक्रोस्कोप के नीचे अगर किसी इंसान को रख दो और उसको आप अंदर 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 डीपर एंड डीपर एंड डीपर अंदर जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में? आपको लास्ट में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. उसके बाद पहले सेल्स मिलेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, उसके बाद एटम्स, एटम्स के बाद प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स. उसके और अंदर जाएंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और अंदर जाएंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो है एनर्जी, ऊर्जा. अभी इस बुक को भी अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख दोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड फाइनली एनर्जी. तो अगर मैं भी एनर्जी हूँ, बुक भी एनर्जी है, आप भी एनर्जी हो, मोबाइल भी एनर्जी है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ का है, और वो है हर चीज़ की वाइब्रेशंस अलग होती है, तरंगे अलग होती है. ओके, एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट वाइब्रेशंस. So I am vibrating at a different frequency. If you are able to see my red colored shirt, it is only because red has a different frequency of vibration. And every color, everything has a different vibration. Everything has a different vibration. जो हमने कल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने ये सीखा कि समान चीज़ें आकर्षित होती है. Actually what is attracted is things which are of the same vibration will come together. तो अगर हमारी वाइब्रेशन लो होगी, लो वाइब्रेशन कब होती है? जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, फीलिंग्स नेगेटिव होते हैं, इमोशंस नेगेटिव होते हैं.
तो सपोज आई एम फीलिंग वेरी एंग्री और अपसेट और सैड और गिल्टी. गिल्ट इज अ वेरी वेरी लो वाइब्रेशन. शेम इज अ वेरी वेरी लो वाइब्रेशन. तो अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी में हूँ, गिल्ट, शेम, फियर, टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तो ऑटोमेटिकली मेरी वाइब्रेशन डाउन जाएगी. और अगर मेरी वाइब्रेशन डाउन जाएंगी तो किस तरह की चीज़ें आकर्षित होगी? उसी क्वालिटी की चीज़ें, लोअर वाइब्रेशन थिंग्स विल कम इनटू माय लाइफ. उसी तरह के लोग, उसी तरह की परिस्थितियाँ, उसी तरह की सिचुएशंस, उसी तरह के सर्कमस्टांसेस, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आकर्षित होती है. ये भी कुदरत का ही नियम है. जैसे मैंने आपको कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ, इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल लॉ. तो हमें क्या समझना जरूरी है कि हमारे लाइफ में वो आएगा जो एग्जैक्टली हमारे वाइब्रेशन के साथ में मैच होता है. तो अगर हमारा वाइब्रेशन हाई है तो हमारे लाइफ में क्या आएगा? उसी तरह के लोग, उसी तरह की परिस्थितियाँ, उसी तरह की घटनाएं, उसी तरह के आइडियाज़, उसी तरह के इंस्पिरेशंस, वो सारी चीज़ें आएगी अगर हमारा वाइब्रेशन हाई होगा. तो हमारा एक गोल ये होना चाहिए कि हमारा वाइब्रेशन हमेशा हाई रहना चाहिए. बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमारा वाइब्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. ओके, सो दैट इज़ द की. देखो, बाहर सब कुछ अच्छा है और हमारा वाइब्रेशन अच्छा है, नो बिग डील, एनीबडी कैन डू दिस. लेकिन माइंड पावर का, जो माइंड की मास्टरी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो तभी हो सकती है कि बाहर कुछ भी हो जाए. जैसे अभी इतनी कठिन परिस्थिति है, लेकिन हमें अपने वाइब्रेशन को डाउन नहीं करना. ओके, तो अगर आपके पास एक नोटबुक है तो मैं आपको एक चीज़ लिखाना चाहता हूँ कि जो टॉप 6 वाइब्रेशंस है, अगर आप पूरे वाइब्रेशनल स्केल को देखो, there is something called an emotional scale or a vibrational scale. At the bottom of the vibrational scale, you have the feeling which is known as depression. तो डिप्रेशन एक ऐसी वाइब्रेशन है जो सबसे लोएस्ट है. इसलिए जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसके लाइफ में और भी ऐसी परिस्थितियां आती है. ओके, तो हमें क्या करना है? वाइब्रेशनल स्केल के टॉप पे जाना है. और टॉप पे जो 6 वाइब्रेशन है उसके मैं नाम आपको देना चाहता हूँ. बिकॉज हमें क्या सीखना है कि हमेशा उस टॉप 6 वाइब्रेशन में अगर हम रहना सीख ले तो फिर हमारे जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ें ही आकर्षित होगी. अगर मुश्किलें भी आएगी, इवन इफ डिफिकल्टीज कम, you will see that you will easily be able to overcome those difficulties and move forward in life. Okay, so what are the top 6 vibrations? Now actually this has been proven by a Japanese scientist. His name was Dr. Masaru Emoto. Dr. Emoto, what he did is he did experiments on water. उन्होंने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए. तो उन्होंने क्या किया कि पानी का समझो ग्लास लिया, बॉटल लिया, कुछ भी लिया, तो उन्होंने वाइब्रेशंस देना शुरू किए. सो व्हेन ही गेव द वाइब्रेशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब आभार, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, डीप ग्रैटिट्यूड. जब उन्होंने वो वाइब्रेशन दिया तो उन्होंने देखा कि जो वाटर के क्रिस्टल बनते हैं, उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि वो जो वाटर के क्रिस्टल बनते हैं वो सबसे ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बनते हैं व्हेन यू गिव द वाइब्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड. ओके, उसके बाद उन्होंने देखा द सेकंड हाईएस्ट वाइब्रेशन इज वाइब्रेशन कॉल्ड अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा करना, अपने आप को प्रशंसा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, गॉड के क्रिएशंस की प्रशंसा करना. लाइक जब हम गार्डन में वॉक लेने जाते हैं तो जनरली हमें ना सिर्फ वॉक लेते हैं, हमारा माइंड कहीं और ही होता है. तो आप अभी से जब भी आप वॉक लेने जाते हो या नीचे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, बी वेरी माइंडफुल. माइंडफुल का मीनिंग क्या है? हम पूरी तरह से अवेयर है कि आसपास के वातावरण में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं. इसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस, कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी एनवायरनमेंट. ओके, सो अगर हम माइंडफुल रहेंगे तो आप देखेंगे कि गार्डन में इतने सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जब हम फ्लावर को ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल ईच फ्लावर इज. सो गॉड्स क्रिएशंस आर सो ब्यूटीफुल बट वी डोंट नोटिस देम. ओके, अगर आप एक फ्लावर को ध्यान से देखोगे तो द इंट्रिकेसी विथ विच इट इज बिल्ट, एवरी सिंगल स्ट्रैंड, एवरी सिंगल, वट एवर यू सी, द कलर्स, द टेक्सचर, उसको आप टच करके देखोगे उसका टेक्सचर इतना सुंदर होता है. तो जब हम ध्यान से चीज़ों को देखते हैं, व्हेन यू सी अ लीफ एंड यू ऑब्जर्व द लीफ केयरफुली, व्हेन यू सी फ्लावर्स, व्हेन यू सी बर्ड्स, व्हेन यू सी द एनवायरनमेंट अराउंड यू, you become very very aware of how beautiful God has created this universe,
and that is the time when we can be truly appreciative of God's creations, right? So what is the topmost vibration? Gratitude. What is the second number vibration? Appreciation. इसीलिए appreciation कितना important होता है, खुद को appreciate करना, दूसरों को appreciate करना. You know what, I'll tell you a reality of life. Human beings will die for appreciation. You know, when human beings work in companies, जब कोई इंसान कंपनी में जॉब करता है तो सैलरी वगैरह तो सब ठीक है, बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट पीपल वांट इज अप्रिसिएशन. फीलिंग दैट आई एम लव्ड, आई एम वैल्यूड हियर इन दिस कंपनी. लोग मेरी वैल्यू करते हैं, मैं यहाँ पे मेरी एक जगह है, मैं जो कर रहा हूँ उसका लोगों को अप्रिसिएशन है. अगर लोग अप्रिशिएटेड फील करते हैं, और वो काम किसका होता है ज़्यादातर, इट इज़ द रोल ऑफ द बॉस. तो द बॉस इज अप्रिशिएटिव, आप देखेंगे वो एम्प्लॉय कभी भी उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा. ओके देखो, इंसान से दो तरह है. किसी से भी अगर काम कराना है ना, तो यू कैन गेट पीपल टू वर्क इन टू वेज. वन इज यू अप्रिशिएट देम, ओके, एंड सेकंड इज मेक देम वर्क अंडर फियर. डरा के काम कराओ. अगर डरा के काम करेंगे तो क्या होगा, उसकी वाइब्रेशन हमेशा डाउन होगी. मतलब डरा डरा रहेगा हमेशा, उसको पता नहीं क्या होगा, कल उठ के उसकी नौकरी चली जाएगी, पैसे कट जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत डाउन होती है. और जब इंसान की वाइब्रेशन डाउन हो जाती है तो कितना भी काम करे वो थक जाएगा. यू नो, आधा जितना काम उसको दिया गया है उसका आधा काम भी करेगा तो वो थक जाएगा. लेकिन अगर आपके नीचे कोई काम करता है और आप उसको अप्रिशिएशन करते हो सही समय पे, यू नो, गलतियां करते हैं तो उसको पकड़ना तो पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई तूने गलत किया. लेकिन जब वो सही काम करता है तब अगर उसको आप अप्रिसिएशन करो तो बहुत खुशी होती है उसको, और अंदर से उसको ऐसा फीलिंग होता है कि माई बॉस इज ऑलवेज विथ मी, ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ मी, इज ऑलवेज, यू नो, ही लव्स मी, ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी. वो इंसान कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा. द सेम थिंग अप्लाइज फॉर अ हाउस, राइट? सपोज आपके घर में आपकी मिसेस आपके लिए कुक कर रही है, या कोई भी आपके लिए जो कुक कर रहा है, तो हम जब खाना अच्छा बनते हैं तो कभी कभी अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. लेकिन जब गलतियां होती है, जैसे नमक नहीं है, या मिर्ची कम है, या फिर मिर्ची ज़्यादा है, तो हम उसको तुरंत ही गलतियां निकालते हैं. सो यू नो, अप्रिशिएटिंग व्हाट इज़ गुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब आप रोज़ खाने को अप्रिशिएट करते हो तो कभी कभी अगर गलतियां निकाल दी तो किसी को बुरा भी नहीं लगता है. लेकिन अगर हम सिर्फ गलतियां निकालेंगे तो किसी को काम करने का भी मन नहीं करेगा. ओके, so the topmost vibration is gratitude, second is appreciation, third is love. Love is also so powerful. Love is not always only romantic love. Huh? Romantic love is one type of love, but there are other loves, you know. So love for your job, love for people, love for the environment around you, love for everything, love for nature, सब कुछ. So love is also considered to be one of the highest vibrations, and खास करके unconditional love का तो और भी ज़्यादा, यू नो, वाइब्रेशन पावरफुल होता है. अभी आजकल के ज़माने में थोड़ा सा लव भी कंडीशनल हो गया है, यू नो. सो व्हेन थिंग्स आर गुड देन देयर इज़ लव, व्हेन देयर थिंग्स आर नॉट गुड देन देयर इज़ नो लव. अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट रियल लव. यू नो, रियल लव इज़ समथिंग विच इज़ अनकंडीशनल. जब आप अपने बच्चों को प्यार करते हो तो देयर शुड बी नो कंडीशंस अटैच्ड, कि तू अच्छे मार्क्स लाएगा तो ही मैं तुझे प्यार करूँगा, तू अच्छा कुछ करेगा तो ही प्यार. So there has to be unconditional love amongst relationships at home, your key relationships in the office. Unconditional love is what is the most powerful vibration, okay? So gratitude, appreciation, love. Fourth is joy, okay? So joy is also very, very high vibration. इसलिए कहा गया है कि do what you love doing. Yeah? कहते हैं कि do what you love और love what you do. दोनों में से कोई भी एक चीज करोगे तो यू विल एंजॉय द प्रोसेस. इफ यू डोंट एंजॉय द प्रोसेस तो आप जल्दी थक जाओगे. समझो आप जो भी जॉब कर रहे हो आप उसको एंजॉय करते हो, तो क्या आप थकोगे? आप 200% काम करोगे ना, दिन रात काम करोगे तो भी थकोगे नहीं. एंड दैट इज वाई इट इज सेड डू व्हाट यू लव. और अगर आप वो नहीं कर पाते हो, समझो कभी कभी हमें ऐसी जॉब करनी पड़ती है जो हमें पसंद नहीं है, तो देन लव व्हाट यू डू. आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है हमेशा. देयर इज समथिंग गुड. आइदर द पीपल आर गुड, द एनवायरनमेंट इज गुड, द फैसिलिटीज आर गुड. You have to start appreciating and, you know, finding the joy in little things in your work. Yeah. So I'll repeat again: gratitude, appreciation, love, joy, and fifth one is peace. मन की शांति.
पीस ऑफ माइंड. ओके, तो पीस ऑफ माइंड कैसे होगा? जब हम ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी प्रैक्टिस का, तब मन शांत होगा. ज़्यादातर लोग मन शांत करने के लिए घर से कहीं दूर चले जाते हैं. दे गो टू हिल स्टेशन एंड दे फील सो पीसफुल. तो वहाँ पे पीस ऑफ माइंड होता है, और घर पे आएंगे तो वापस माइंड के पीसेस हो जाते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट वर्क, राइट? व्हाट डू वी नीड टू लर्न? वी नीड टू लर्न हाउ टू बी इन पीस ऑफ माइंड वेरेवर वी आर डूइंग वट एवर वी आर डूइंग. हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसमें हमें खुशी मिलनी चाहिए. तब हम पीस को महसूस कर सकते हैं. रनिंग अवे टू द जंगल्स और रनिंग अवे टू द हिमालयाज इज नॉट द सोल्यूशन. हम जहाँ हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, उसके अलावा, उसके बावजूद भी हमें पीस कैसे महसूस करना है, वो हमें सीखना ज़रूरी है. ओके, संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग दिस आउट. So we have gratitude, appreciation, love, joy, peace, and last is passion. Passion is enthusiasm. कोई भी काम को अगर आप enthusiasm से करते हो तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. अगर आप उस काम में अगर enthusiasm या passion नहीं है तो उसमें एनर्जी नहीं होगा. जैसे कि अगर आप किसी, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द लेडीज़, अगर आप किसी साड़ी के सेल्स शोरूम में जाते हो और वहाँ का जो सेल्समैन है वो बहुत पैशनेट है, और आप खरीदो या नहीं खरीदो, वो दिखाते ही रहता है आपको साड़ी, दिखाते रहता है, दिखाते रहता है, दिखाते रहता है. उसके अंदर इतनी पैशन है, वो आपको सब कुछ दिखाना चाहता है, सारी साड़ीज़ को दिखाना चाहता है. क्या आप उसको नाराज़ करके निकलोगे वहाँ से? ज़्यादातर लोग तो नहीं निकलते नाराज़ करके, बिकॉज द पर्सन इज सो पैशनेट. You want to buy something and make sure the person is happy before the time you go, right? But अगर आप कोई बहुत ही सुंदर साड़ी के शोरूम में जाते हो, वहाँ पे साड़ीज बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ का जो सेल्समैन है ना, उसका वाइब्रेशन बहुत डाउन है. मतलब एक साड़ी दिखाया, आपने उसको बोला ना कि दूसरी साड़ी दिखाओ, तो अपना मुंह चढ़ाता है और वो ऐसे नाटक करता है जैसे कि साड़ीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप लेते ही नहीं हो. So these people are unhappy people, they have grouchy faces. Would you want to buy something from these people? No ways. You don't want to buy anything from these people. You just walk out of the showroom because उनका चेहरा देख के आपको लगता है क्या इससे काम करे. Now this is true for anything. If you look at a salesperson, for example, कोई सेल्स का बंदा है, अगर आप उसको, वो सेलिंग करने जाता है, उसने दुनिया की सारी सेल्स टेक्निक सीखी है. ओके, सेल्स के प्रोग्राम्स अटेंड किए, सेल्स प्रोफेशनल्स कैसे अच्छा सेलिंग करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे सेल को क्लोज करना है, नेगोशिएशन टैक्टिक्स कैसे करना है, सब कुछ सिखाया उसने. लेकिन जब वो कस्टमर के सामने जाता है तो उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ है, दुखी है, अंदर से ऑलरेडी नेगेटिव थिंकिंग चालू है कि वो कस्टमर खरीदने वाला नहीं, ऐसे हर बार टाइम पास करने के लिए बुलाता है. तो द वाइब्रेशन कैन बी फेल्ट बाय द कस्टमर. वो कस्टमर फील कर सकता है आपकी वाइब्रेशन. और आप चाहे एक शब्द बोलो या नहीं बोलो, अगर उसको आपके प्रेजेंस में अच्छा नहीं लगेगा तो 5 मिनट में वो घड़ी देखेगा और बोलेगा भाई तू जा, अभी यहाँ से जा. So if people don't feel good in your presence, that means somewhere the vibration is not good. So what do we need to do? हमें अपने वाइब्रेशन को किसी भी तरह हमेशा हाई रखना है. So I'm going to give you a few tips on how to keep your vibrations always high. That is known as raising your vibrations. And trust me, this is something I've been practicing for almost 20 years now. उसमें खास करके जब 8 साल से मैं ये काम जब से करने लगा हूँ, तब से तो I've been practicing it day and night, and that is why I always try to keep my vibrations high. And as a result of that, what has happened is wonderful and amazing things come to my life. So in spite of all the challenges, if you are able to keep your vibrations high, amazing. So सबसे पहला कौन सा था vibration? Gratitude. तो हम gratitude में कैसे रहेंगे? I already told you the technique. Every day practice in your gratitude journal. Write down for 7 to 10 minutes of whatever you're grateful for. And you know why only morning? Be grateful throughout the day. मतलब अगर आप दिन भर ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल बी 360 डिग्रीज, इट विल चेंज. सिर्फ एक ये प्रैक्टिस अगर आप ठीक से करोगे, मैजिक विल हैपन इन योर लाइफ. अगर आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में थोड़ा और सीखना है, जानना है कैसे प्रैक्टिस करना, तो प्लीज़ रीड दिस बुक कॉल्ड द मैजिक बाय रोंडा बर्न. ओके, शी इज़ द वन हु इज रिटन द सीक्रेट. तो उनकी और एक बुक है जिसको कहते हैं द मैजिक. ओके, अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर
रोज रोज वही चीज लिखना, थैंक यू आई एम लिविंग टुडे, थैंक यू आई हैव अ वंडरफुल बॉडी, थैंक यू आई हैव दिस। तो रोज रोज मैं लिखता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ, और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मैं पर्पसली कर रहा हूँ और उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं, ऐसे लगता है मुझे। तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आप चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो अपने आप से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछो कि अगर ये चीज मेरे लाइफ में आज नहीं होती तो क्या होता। राइट? सपोज आज का दिन मेरे लाइफ में नहीं होता तो क्या होता। तो immediately you will feel such high level of gratitude, that my God, thank you so much that I'm alive today, that my family is still, I'm still able to spend time with my family. अगर मैं नहीं होता तो मेरी फैमिली का क्या होता, सबका आसपास लोगों का क्या होता, पीपल हु आर देयर डिपेंडिंग ऑन मी, उनका क्या होता। तो इंस्टेंटली हमें वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, बहुत डीप लेवल की फीलिंग आती है। इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर योर आईज, लेट्स से योर बॉडी, फुल बॉडी, इफ यू नॉट ग्रेटफुल, तो जस्ट थिंक कि समझो एक दिन ये आंख एक खराब हो गई या एक आंख ब्लाइंड हो गई तो क्या होता। जस्ट आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन, एंड व्हेन यू आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, द लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट विल कम आउट विल बी अमेजिंग। ओके, अगर आप ठीक ढंग से ग्रैटिट्यूड करते हो तो 7 से 10 मिनट के अंदर आप देखोगे कि आईज में से इट विल बी वाटरी, यू विल ऑलमोस्ट फील लाइक क्राइंग। ओके, सो सबसे पहला है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। Second highest vibration is appreciation. So learning how to appreciate everybody. Keep a promise that every single day you will appreciate at least 5 people. क्या हम अपने वॉचमैन को अप्रिशिएट करते हैं जो दिन रात बेचारा बैठा है, इतनी बुरी हालत है, आज बाहर आप देखो दिन भर वो बेचारा मास्क पहन के बैठता है, गर्मी में बैठता है, लोग आते हैं जाते हैं, पूरा चेक करना पड़ता है। आज की परिस्थिति में भी वो वॉचमैन बेचारा गेट पे बैठा है। और कभी कभी मैं देखता हूँ लोग ऐसा चिल्लाते हैं, वॉचमैन वॉचमैन तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इट इज़ सो अनफेयर। आई मीन दीज पीपल आर रिस्किंग देयर लाइव्स, दे आर कमिंग हियर सर्विंग अस। डोंट यू थिंक दैट व्हेन वी गो across the gate that we should look at the watchman into his eyes and say thank you so much for what you're doing. Yeah, this is also true for policemen. ज़्यादातर पुलिसमैन को हम क्या करते हैं, वी गिव नेगेटिव वाइब्स, अभी मामा आएगा, अभी पैसा मांगेगा, अभी ये करेगा, अभी वो करेगा। बट यू नो व्हाट, इफ़ यू स्टॉप योर कार वन डे, वो पुलिसमैन अगर रोड पे नहीं होते तो आपकी गाड़ी चल नहीं पाती। दे आर द वंस हु आर स्टैंडिंग इन द डस्ट, इन द रेन, in the sunlight. It is so hot. In spite of that, they're standing there to make sure that your car is always running. So can we stop our car once in a while and just, come out of the car and say, Mr. Policeman, thank you so much for what you're doing. I really appreciate what you're doing. क्या हम ये कर सकते हैं? Definitely yes. Sanjeev ji is saying that the Wuhan virus has given us a chance to be grateful to the Almighty for keeping us alive and our family bound together for 21 days. Yes, Sanjeev ji, absolutely true. So, even the virus has, made us realize so many things, the importance of so many things, So, being appreciative, promise yourself, minimum 5 लोगों को appreciate करो. Can we do this even while we are sitting at home? Of course, yes. Can you send an appreciative message on WhatsApp to everybody, people who are doing something for you? Thank you, boss, that you are taking care of us. Thank you, my team members. आप लोग हो तो मैं इतना अच्छे से काम कर पा रहा हूँ. Thank you to your wife, to your husband for doing whatever they're doing. Just be appreciative of that, okay? The third is, so gratitude, appreciation. Third is love. Unconditional love. Yeah? Practice unconditional love first with yourself. Because ज़्यादातर हम क्या अपने आप को करते हैं, हम अपने साथ भी अनकंडीशनल लव नहीं करते. समझो आप अपने आप को मिरर में देखते हो, तो आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू अ क्वेश्चन, डू यू ट्रूली अनकंडीशनली लव योर सेल्फ? बिकॉज हम जनरली मिरर में देखते हैं ना, अगर हम ऑनेस्टली बताएं ना, तो वी आर ऑलवेज टेकिंग आउट मिस्टेक्स. मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे क्रीज आ गई है, मेरा पेट बढ़ रहा है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं बूढ़ा लगने लगा हूँ. That means what we are seeing is we are not really loving ourselves. We are criticizing ourselves. जब हम खुद ही को criticize करते हैं तो हम दुनिया से क्या expect कर सकते हैं? So unless you don't love yourself genuinely, you will not be able to accept other people's loves, or you are not able to love other people unconditionally. Okay?
So the first practice that we must do for love is to genuinely love ourselves unconditionally. उसमें ना कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए. ज़्यादातर लोग क्या कनेक्शन करते हैं पता है? जब मेरा वो काम हो जाएगा ना तब आई विल लव माई सेल्फ. जब मैं स्लिम हो जाऊंगी ना तब आई विल लव माई सेल्फ. जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब आई विल लव माई सेल्फ. जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तब आई विल लव माई सेल्फ. You know, so generally we are attaching love with all of these conditions, and conditional love is not good at all. क्योंकि जब कंडीशन ठीक होंगे तो आप अपने आप को प्यार करोगे, और जब कंडीशन ठीक नहीं होगे तो आप अपने आप को नफरत करोगे, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ गोइंग टू टेक योर वाइब्रेशन डाउन. ओके, तो हमें अपने आप को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है, जेन्युइनली प्यार करना है. And the way to do that is an exercise which is called the mirror exercise. Mirror exercise was an exercise designed by one of my teachers. Her name is Louise Hay. Louise Hay was such an amazing teacher. And the only thing that she taught people is how to love yourself unconditionally. Okay? तो उन्होंने एक एक्सरसाइज डिज़ाइन की थी जिसका नाम है मिरर एक्सरसाइज. तो उस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? मिरर में अपने आप को देखना है और अपनी आंखों में देख करके अपने आप से कहना है, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू. अगर आपके पास कोई छोटा सा मिरर हो आसपास तो प्लीज़ अभी लेके आइए. या आई शो यू माई मिरर, ओके, विच वी गिव इन द वर्कशॉप्स. This is a love-shaped mirror. So what I do in the morning is I would look into the mirror, look into my eyes, and with a very deep sense of appreciation for myself, I would tell myself, Sunil, I love you. I really, really love you. So this is what you have to say. Sunil, I love you. I really, really love you. You have to say this 5 times. अब आप सुनील सुनील मत करो, आपको अपना नाम लेना है. ओके, आई एम सेइंग सुनील बिकॉज इट्स माय नेम, बट व्हेन यू लुक इनटू द मिरर you have to use your name and say it at least 5 times. Now generally, yeah, thank you Sanjeev ji, the mirror is still with you. Okay, सैयद जी आपका अब इस डे 2 हुआ नहीं है, आपने सिर्फ एक ही दिन हुआ है, so that is why आपको मिरर मिला नहीं है. Okay, so when we do your day 2 we'll give you the mirror. Okay. सो एनीवेज, पहली बार जब हम मिरर में देख के आई लव यू बोलते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है. काफ़ी लोग हंसते हैं, काफ़ी लोगों को ऑकवर्ड लगता है, काफ़ी लोग अपने चेहरे को भी नहीं देख पाते. सम पीपल टेल मी एंड कम एंड टेल मी कि सर आई डोंट फील लाइक लुकिंग एट माई फेस ओनली बिकॉज आई डोंट लव माई सेल्फ एट ऑल. So I tell that person that the only reason why you have so many problems in your life is because you don't love yourself. अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा डाउन होगी, आपका सेल्फ एस्टीम डाउन होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा. कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो क्या होगा? दैट यू विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल, योर रिजल्ट्स विल बी डाउन, ऑल ऑफ दिस विल बी डाउन व्हेन यू आर नॉट एबल टू लव योरसेल्फ. ओके, सो आज से नो कंडीशंस अटैच्ड, ऑलवेज लुक इनटू द मिरर एंड हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करो, दिल से अप्रिशिएट करोगे. आप जो भी कर रहे हो, जितना पता है उतना तो आप करते ही हो ना. देखो, एक चीज़ हमें ये जानना ज़रूरी है कि इन एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पास्ट में भी आपने जो कुछ भी किया, आपको जितना पता था उस हिसाब से किया था कि नहीं? तो अगर उस समय आपको कुछ ज़्यादा पता होता तो आप ज़्यादा करते. एग्जैक्टली सेम वे आज भी आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपको जितना पता है उस हिसाब से आप कर रहे हो कि नहीं? द बेटर यू नो, द बेटर यू विल डू. So then why feel guilty? Why feel shameful of what you have done? Learn from past mistakes. ऐसा नहीं है कि गलतियाँ करके उसमें से सीखना नहीं है, उससे गलतियाँ में से सीखना है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है, लेकिन अपने आप को डाउन मत करो. ओके, सो लव योर सेल्फ, राइट? सो जब आप अपने आप को प्यार करोगे ना, एवरीथिंग एल्स विल बी सॉर्टेड, बिकॉज देन यू विल सी दैट पीपल विल ऑटोमेटिकली लव यू. They will love you, they will, you will be able to accept other people's love, you will be able to understand other people's love. ये सारी चीज़ें होगी और धीरे धीरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स वैनिश होने शुरू हो जाएंगे. इनफैक्ट आई हैव हैड सो मैनी पीपल कम एंड टेल मी कि सर सिर्फ मिरर वर्क करता हूँ मैं, सिर्फ मिरर वर्क, और उससे मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उससे मेरे रिजल्ट्स बढ़ गए. ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस, स्टार्ट विथ अनकंडीशनल लव विथ योर सेल्फ, विथ योर फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट, विथ योर चिल्ड्रन. बच्चों को कंडीशंस मत लगाओ कि बेटा तेरे पास ये तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो ही तुझे प्यार करूँगा. Just genuinely appreciate and love your children,
आप रात को जरा देखो, जब वो सो रहे तो उनको सोते हुए देखो, एंड आस्क योरसेल्फ कि वो बच्चा आपके लाइफ में आज नहीं होता तो क्या फीलिंग होती. So when we look at our children, we say, they are the ones who really add so much meaning into our lives. So where is the question of judging them, not, having huge expectations. ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में कुछ आगे अच्छा काम करें, लेकिन प्यार कम नहीं होना चाहिए. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू एंश्योर. स्टार्ट विथ योर सेल्फ, स्टार्ट विथ योर फैमिली मेम्बर्स, एंड यू विल सी दैट everybody, the world will love you. Okay. So then we did gratitude, we did appreciation, appreciate at least 5 people every day. ओके, आज ग्रुप में प्लीज़ जिसको भी आप प्यार करते हो उसको आप अप्रिशिएट करो, भले ये ग्रुप पे करो, लेकिन प्लीज़ अप्रिशिएट, प्लीज़ अप्रिशिएट पीपल, राइट. एंड हुएवर इज़ द वन पर्सन यू अप्रिशिएट, यू लीव अ कमेंट दैट आई अप्रिशिएट सो एंड सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. ओके, आज एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा. And love yourself, so mention that also in the comment, that I truly love myself the way I am. Okay, good, excellent. Prakash ji is saying, can you put more light into how exactly to love oneself? Okay, Prakash ji, one of the best ways is to do mirror work. तो जैसे मैंने आपको कहा, इनिशियली आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, बट कीप डूइंग इट नोइंग दैट यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू योर बेस्ट. जब आप ये जानते हो कि आप अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे अपने लिए अप्रिसिएशन होगा. अप्रिसिएशन और लव के बीच में बहुत फाइन लाइन है. व्हेन यू हैव अ डीप सेंस ऑफ अप्रिसिएशन फॉर योरसेल्फ, दैट मीन्स यू रियली रियली लव योरसेल्फ. ओके, ग्रेट. एंड इफ टाइम परमिट्स, वील डू मोर एज वी मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट सेशंस. ओके, सो देन जॉय, हाउ विल यू एक्सपीरियंस जॉय? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज सजेस्ट करना चाहूँगा. उसमें आप टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन 20 थिंग्स दैट आई लव टू डू. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? 20 थिंग्स दैट आई लव टू डू. मतलब एक लिस्ट बनाइए कि कौन से ऐसे काम है जो करके आपको बहुत खुशी होती है, यू एन्जॉय. ओके, सो कुछ लोग हैं ना, अच्छे मूवीज देखते तो एन्जॉय, व्हेन दे टॉक टू अ नाइस फ्रेंड दे एन्जॉय. Okay, when they talk on the phone to a nice friend, when they look at baby videos where babies are, creating some fun, so they enjoy that. When they take a walk, they enjoy. Spending time with the family, they enjoy. So write down 20 things, minimum 20 things लिखिए, which you enjoy doing. Okay, और ये लिस्ट है ना, आप अपने जेब में रखो हमेशा. तो जब भी आपको लगता है कि वाइब्रेशन थोड़ा डाउन गया है, तो उस लिस्ट में से कोई भी एक चीज़ पकड़ के उसको करना शुरू करो. जैसे कोई फ्रेंड ऐसा है जो आप उसको फ़ोन करोगे तो आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, तो उसको तुरंत फ़ोन करो. जस्ट टॉक टू द फ्रेंड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड यू विल सी द वाइब्रेशन विल चेंज. ओके, व्हेन यू गो टू द गार्डन यू मे एंजॉय दैट, सो टेक अ नाइस वॉक, कम बैक, 10 मिनट वॉक लेके आ जाओ. सो टेकिंग चार्ज ऑफ आवर फ्रीक्वेंसी, आवर वाइब्रेशन इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो, किसी ने हमको हर्ट भी कर दिया और हम हर्ट हो गए और हमारी वाइब्रेशन डाउन हो गई, हमें समझ में आ रहा है कि अभी हमारी वाइब्रेशन डाउन हो गई. अब इस वाइब्रेशन को ऊपर लाने का काम किसका है? जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है. उसको और कोई नहीं बदल सकता. रिमेंबर, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर सेइंग इज ओनली इन योर कंट्रोल. तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. बाहर से कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने वाइब्रेशन को फटाफट चेंज करके वापस आना है. ओके, Padmaja says, I love dancing. Okay, Padma says, right now I appreciate you, sir. Thank you so much, Padma ji. Thank you so much. So, we were on joy, 20 things that you love to do. Okay, and we have one of our participants here today. His name itself is Joy. So I just love his name because usko jab bulao, joy bulao, to you experience the joy. Okay. So write down the 20 things that you love to do, and please pick up any one thing and just do it at any point of time. Yeah, whenever you're feeling a little low, whenever you're feeling a little down. लेकिन चुन के लिखो. The 20 चीज़ों का जो आपको बहुत पसंद है वही चीज़ लिखना उसमें. Okay. So we covered gratitude, appreciation, love, joy, peace. How will you experience peace? Peace के लिए the best solution is meditation. There is no other medicine for the mind. Remember this. There are thousands of medicines for the body.
आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे, आप बोलोगे मुझे 10 प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब आपको अच्छे से हर चीज़ के लिए आपको एक मेडिसिन दे देंगे, ओके। लेकिन माइंड के लिए कौन सी मेडिसिन है? माइंड के लिए एक्चुअली कोई मेडिसिन नहीं है। माइंड के लिए एक ही मेडिसिन है और वो है मेडिटेशन। तो यू मस्ट मेडिटेट एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स एवरी डे, मिनिमम 20 मिनट्स। अगर आपको 20 मिनट से ज़्यादा, आधा घंटा, 1 घंटा मिला तो नथिंग लाइक इट, हो ना। और राइट नाउ तो वी ऑल हैव सम टाइम, तो व्हाई नॉट बेसिकली डू सम मेडिटेशन एवरी डे, या फाइंड टाइम एंड डू मेडिटेशन। मैंने आपको कल मेरे फेसबुक पेज पे रिलैक्सेशन का ऑडियो भी दिया है, आप उसको रेगुलरली उसको सुनिए, हर रोज़ एक बार सुनिए। इट इज़ अ 30 मिनट और मेडिटेशन आपको डीप अल्फा स्टेट में लेके जाएगा, ताकि आप यू विल नो हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। धीरे धीरे आप अपने आप कर सकते हो। मेडिटेशन में सिर्फ सिंपल चीज़ क्या करना है, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है। कंप्लीटली फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और पूरी लंबी और गहरी सांसें लेनी है, ओके। लंबी और गहरी सांसें लेनी है। और जब आप ये लेते हो तो आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, एंड डू इट एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, ओके। सो दैट वे यू विल सी दैट योर माइंड विल स्लोली एंड स्टेडली बिकम मोर एंड मोर पीसफुल, ओके। नाउ द लास्ट वाइब्रेशन, लव, जॉय, पीस एंड पैशन। तो पैशनेट कैसे होना है? पैशन बेसिकली कम्स फ्रॉम डूइंग, following the purpose, your purpose, you doing something that you truly made for। आप वो काम कर रहे हो जिसके लिए आप बने गए हो, तो आपको जनरली उसमें पैशन लाना मुसीबत नहीं है, उसमें एनर्जी, एंथुजियाज्म, वो सब लाना मुश्किल नहीं है। और पैशन एक तरह से और भी आता है जब भी आप किसी और को हेल्प करते हो, सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ब्रिंग योर वाइब्रेशन अप इज टू हेल्प अदर पीपल। तो इस समय मुश्किल की घड़ी में जब हम किसी को हेल्प करते हैं, किसी भी तरह, किसी को फ़ोन करके उसको हेल्प कर दिया, किसी के साथ में जो मैंने आपको ये टिप्स बताई आप उसके साथ में शेयर कर रहे हो। आई एम श्योर लॉट ऑफ यू हैव शेयर्ड दैट ये सेशंस हो रहे 9:30 बजे, नहीं तो हमारा ऑडियंस साइज इतना होता नहीं है। आज वी हैव ऑलमोस्ट 216 पीपल which are showing live, and I'm sure there are lots of family members sitting with them. So I'm estimating that approximately 400 to 500 people are right now listening to this particular session, and I'm really grateful to each one of you. So when I'm doing this work which I love to do, I'm automatically passionate about it, okay? So my energy, my enthusiasm, I'm sure you are able to feel it. But when you help other people, there's a lot of passion. तो आप जो भी बिजनेस करते हो, द वे टू एक्सपीरियंस दिस इज, जो भी बिजनेस करते हो, जो भी जॉब करते हो, जहाँ पे भी जो करते हो, एक मन में ये भावना रखनी है कि मुझे किसी को हेल्प करना है। या अगर आप जॉब बिजनेस भी कर रहे हो तो आपका ये मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मेरे कस्टमर्स की ज़िंदगी में मुझे कोई ना कोई बदलाव ज़रूर लाना है। जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, सपोज आप, जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट है सुनील मिश्रा जी, वो बस्ती में है, लखनऊ में। आई डोंट नो वेदर ही इज लाइव, आई मीन ही इज ऑनलाइन टुडे और नॉट, बट सुनील मिश्रा जी क्या करते हैं, ही इज़ बेसिकली सो पैशनेट। वो कहते हैं अपने सेल्समैन को कि भाई तू मोटरसाइकिल बेचने जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल बेचते समय मन में एक ही भावना रखना है कि ये मोटरसाइकिल से मेरे कस्टमर की ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आएगा, So when they're selling a motorcycle, it is not only to achieve the numbers. Remember this. They're not only selling the motorcycle to achieve the numbers. They're selling motorcycles to bring more happiness and joy into people's families. अब जो इंसान पहली बार 2 व्हीलर खरीदता है उसके लिए वो कितनी बड़ी चीज़ है, आप सोचिए। जब हम उस भावना से कोई भी चीज़ काम को करते हैं तो हमारा वाइब्रेशन बहुत अलग होता है, तो जब मैं इंश्योरेंस के लोगों को बात करता हूँ, जब आप इंश्योरेंस बेचते हो तो आपके अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि मेरे इंश्योरेंस के द्वारा किसी की फैमिली को प्रोटेक्शन मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है। जब मैं फार्मा कंपनीज में जाता हूँ, देखो फार्मा कंपनीज दे सेल मेडिसिन, तो उनको भी मैं कहता हूँ जब आप मेडिसिन बेचते हो तो सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए मत बेचो। सेल योर मेडिसिन बिकॉज योर मेडिसिन इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू समबडीज लाइफ। सेल इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और जब लोगों ने ये फॉलो करना शुरू किया तो उनके सेल्स में बढ़ाव इतने बढ़ना शुरू हो गया, दे वर एबल टू डबल एंड ट्रिपल देयर सेल्स। या सो संजीव जी इज ऑल्सो हियर, ही हैज ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस मिरेकल इन हिज कंपनी। संजीव जी, आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू शेयर योर एक्सपीरियंस that he was able to take his company from almost, I would say, about 35 crores to about 100 crores in about
1.5 to 2 years time, he was able to take his company to a new level because he actually had his entire company trained. He sent me to all his sites, सब जगह पे लोगों को train किया, and everybody's vibration started going up, and everybody was focused on the target of 100 crores, and they were able to achieve it, so they were able to achieve it, and it is definitely possible. Same thing happened with Sunil Mishra ji, same thing happened with so many organizations that we worked with. Okay, great. So these are the 6 vibrations that we need to always be in. बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो जाए, ग्रैटिट्यूड तो हम फिर भी कर सकते हैं, बिकॉज कितना भी बुरा सिचुएशन हो तो कोई ना कोई चीज़ तो होती है ना जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो. अप्रिसिएशन भी हम कर सकते हैं, या वी कैन ऑलवेज लव आवर सेल्फ. ये सारी चीज़ें, दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. तो अगर ये सारे प्रैक्टिसेस को हम करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी, और वाइब्रेशन हाई रहेगी तो जिंदगी हमेशा खूबसूरत रहेगी. ओके, so thank you so much. Yes, Sanjeev ji is saying we achieved 100 crores all to the coaching, due to the coaching of Sunil Parekh ji. Wow, thank you so much, Sanjeev ji. You're saying that itself is a very big thing for me. Thank you so much. Really appreciate your talking to the audience and letting them know. So I would like to end this session by once again, we'll do meditation. Meditation किए बिना तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं. But I would like to okay, Rahul Patil is saying, I give at least 100 people a new job. Honestly, it is my passion of giving jobs to other people. Awesome, wonderful. Sanjeev ji's new target is now 300 crores. And midst of all of this, he knows that he can still make it happen. When if everybody keeps the vibration high, they will definitely be there, right? Yes, thank you. My mom is also there today. Usha, she is my mom. Jasmine, my wife, is there. Everybody is there online right now watching. Thank you so much, guys. So I would like to end by giving you a piece of good news. Good news is that I'm going to launch the Mind Power Unlimited workshop, which is our signature workshop. I'm going to launch it online. And this is the first time we are offering this workshop. It is a very, very powerful workshop. And we're going to do it over a time of 4 days. It is on 9th, 10th, 11th and 12th of April. And we're going to do 4 hours every day, 9 to 1. On 9th, 10th, 11th and 12th of April. It is going to, basically, like I said, it's going to be in the morning from 9 to 1. And generally, our fees for this workshop when we do outside is 14,250, inclusive of GST. That's our normal pricing. But because I'm doing this online, and because, obviously the cost will be much lower, and I'd like to offer it to you all at a much more reasonable price, it is at 5,000 plus tax, which is 5,900. Okay, so 18% is the tax. So take maximum advantage of this. Okay, spread it in your friends, because काफ़ी सारे लोग इस प्रोग्राम को नहीं कर पाते, because या तो वो क्लास में आ नहीं पाते, या तो हस्बैंड आते तो वाइफ नहीं कर पाती है, बिकॉज छोटा सा बच्चा घर में है. तो ये मौका आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर वेरी लिमिटेड. आई डोंट नो हाउ मेनी आई विल डू. इफ इट वर्क्स वेल, आई विल कंटिन्यू टू डू दैट. बट 9 to 12th, 9th, 10th, 11th and 12th, yes. 4 दिन 4 घंटे हम करेंगे. आई एम गोइंग टू पोस्ट द डिटेल्स ऑन द फेसबुक पेज टुमारो मॉर्निंग. whoever wants to register can register online, and I will share. अभी जो मैंने आपके साथ में यहाँ पे इतने दिनों में शेयर किया है, वो तो इट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग. माइंड पावर का नॉलेज इतना वास्ट, इतना डीप है कि आप उसको सीखोगे तो इट विल डेफिनेटली बी लाइफ चेंजिंग. ओके, सो आई विल डेफिनेटली सेंड दैट. यस संजीव जी, आई विल सेंड द लिंक फॉर पेमेंट्स एज वेल. सो थैंक यू सो मच. So now we'll do the meditation. So everybody ready for meditation? We have 215 people. Okay. Yes, Nishad, it is the Mind Power Unlimited workshop which we are going to do online. Okay. And then we also have a facility that people who will sign up online and pay the 5,000 plus tax, they can also come to my live workshop. जब भी मेरा लाइव वर्कशॉप होगा तो आप वहाँ पे भी आ सकते हो, तो पूरा उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आ सकते हो. उस समय आपको सिर्फ होटल का कॉस्ट पे करना है बस. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एल्स. सिर्फ होटल का जो फूड का कॉस्ट है उसको पे करके आप उसको पूरी तरह से वहाँ पे आकर के इन प्रेजेंस, मेरे प्रेजेंस में आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो. ओके,
So this is something we're doing specifically for this time period when people have the time, they're at home and they can make best use of the time. Okay, so ready for meditation, everybody? Good. So let's do some meditation. We have a lot of people today. I'm expecting that at least 300 to 400 people are there. So if it is 400 people, that means almost about 1,60,000. Is it right? Or it is 16,000, sorry. 16,000 people will be attending. Basically, the energy of the whole place will be almost to the extent of 16,000. Oh, Nishad is saying 218 into 218 is 47,000. Amazing. That will be so nice. Great, great, great. Thank you. Thank you, guys. So let's sit in the relaxation position. रिलैक्सेशन पोजीशन का मतलब ये है कि आप जब अपने चेयर पे बैठे हो तो लेग्स को क्रॉस नहीं करना है, हैंड्स को क्रॉस नहीं करना है. हैंड्स को अपने लैप्स के ऊपर ऐसे रख दीजिए, या तो ऊपर की ओर फेस करके यू कैन बेसिकली डू दिस मुद्रा विच इज कॉल्ड द ध्यान मुद्रा. ओके, एंड लेट द पाम फेस अपवर्ड. ओके, मेक श्योर दैट ऑल द फिंगर्स आर टाइट and this is forming a 0. Okay, and then let the palms face upward, put them on your laps. Okay, take nice support of your back, of your chair. Let the back be well rested, let the spine be as straight as possible without really putting too much pressure on your back. अच्छे से rest करो and gently close your eyes. Gently close your eyes and start taking deep, long breaths. And as you start taking deep, long breaths, you allow yourself to go deeper and deeper and deeper into relaxation. अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें. सांस अंदर जाएगी, सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है. अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें. सांसों के ऊपर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने नाक के ऊपर ध्यान दीजिए, ऑन वन ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स, द टिप ऑफ योर नॉस्ट्रिल, so that you can actually feel the air going in and coming out, going in and coming out. Just stay focused on your breathing. Now experience that a beautiful wave of relaxation is starting to enter from the top of your head. This wave of relaxation is coming directly from God. You can feel the wave of relaxation passing from the top of your head, going through your forehead. कपाल के थ्रू पास हो रहा है, अपने टेम्पल्स को कवर कर रहा है. You can feel the cool sensation of this relaxation wave going further down, covering your eyes, covering your nose, covering your ears, covering your lips, covering your chin area. आपका पूरा सिर अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है. Every single cell of your face is now completely relaxed. Then relax your feel that the wave of relaxation is passing through your neck area, your shoulder area. Okay, आपकी गर्दन को कवर कर रहा है, आपके कंधों को कवर कर रहा है, और भी नीचे जा रहा है धीरे 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 धीरे, covering your chest area, covering your hands, covering your abdomen area and covering your entire legs. विजुलाइज करिए कि ये जो रिलैक्सेशन का वेव है, इट इज पासिंग थ्रू एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी. वी हैव 50 ट्रिलियन सेल्स. हर सेल के अंदर से रिलैक्सेशन का वेव पास हो रहा है.
and it is calming down every single cell of the body. Your entire body, right from the top of your head, going all the way to the tip of your toe, your entire body is now completely relaxed. और अब आपका बॉडी रिलैक्स हो चुका है, तो हम अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे. और माइंड को रिलैक्स करने के लिए आई एम गोइंग टू काउंट डाउन फ्रॉम 20 to 1. 20 से की गिनती करूँगा, और जैसे जैसे मैं गिनती करूँगा आप हर गिनती के साथ ऐसा महसूस करिए कि आप एक सुंदर सीढ़ी के नीचे जा रहे हो. स्टेप बाय स्टेप यू गोइंग डाउन द स्टेयरकेस. और जैसे आप एक कदम नीचे लेते हो तो आप अपने अर्ध जागृत मन की बहुत ही गहरी अवस्था में जाते जा रहे हो. यू गोइंग 1,000 times डीपर into the subconscious mind with every step. So starting with 20, धीरे धीरे staircase में नीचे जाना शुरू करिए. 20, 19, 18, 17, going deeper and deeper. 16, 15. With every count, you're going 1,000 times deeper into your subconscious. You may transport yourself to one of the most beautiful places on planet Earth. अपने आप को एक ऐसी जगह में लेके जाइए जो दुनिया की शायद सबसे खूबसूरत जगह हो, जो आपको बहुत ही पसंद है. और जैसे आप उस सुंदर जगह में पहुंच जाते हो, आपका मन और भी शांत हो जाता है. ये एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत ही पसंद है. हो सकता है कोई गार्डन हो, या कोई बीच, या कोई हिल स्टेशन. हर बार आप अपने आप को सेम जगह पे लेके जाएंगे तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही आपका माइंड वहाँ जाएगा तो वो और भी गहरी अवस्था में चले जाएगा. तो ट्राई टू कीप योर ब्यूटिफुल प्लेस ऑलवेज द सेम whenever you go into meditation. And as you find yourself in this beautiful place, your mind becomes more and more relaxed. At this stage, both your body and your mind are now completely relaxed. आपका शरीर और आपका मन दोनों ही पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. You are now in the deep alpha state of mind. The alpha state of mind is a highly beneficial state of mind. In this state, you have access to the infinite intelligence that exists within you. You are connected with your subconscious mind, and you have access to the infinite intelligence that exists within you. इस अवस्था में आप जो भी मनोचित्रण करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, और जो भी स्वसूचन करते हो, दैट मीन्स एफर्मेशंस करते हो, वो चीज़ आपके जीवन में सच बनकर ही रहती है. So now, once you are in this beautiful place, visualize that your own God is standing in front of you. उनको पूरी तरह से विजुलाइज करिए. And you are very grateful to see your own God there. So you are at His feet, and now you express your deepest gratitude to God. That thank you so much, God, that I am alive today, that I am still breathing. Thank you for one more day
to make a difference to people in my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for my body, which is so intelligent and it is allowing me to do all my work. ये मेरी बॉडी है जो फिट है, फाइन है और उसके वजह से मैं अपना काम कर पा रहा हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई बॉडी. आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज सो दैट आई कैन सी द वर्ल्ड and see the beautiful world. मेरे कान, sense of hearing is working, so melodious music को भी मैं सुन पा रहा हूँ. अभी ये meditation को भी मैं सुन पा रहा हूँ. Sense of touch, so I can touch and feel the love of my loved ones. Thank you for my heart, which is pumping so much joy and happiness 7/24. 7 दिन और 24 घंटे चलते रहता है. तो थैंक यू माई डियर हार्ट. थैंक यू माई किडनीज फॉर फिल्टरिंग. थैंक यू माई ब्रेन फॉर कंट्रोलिंग माई बॉडी. थैंक यू टू माई infinitely intelligent mind, which is helping me solve problems, achieve my goals every day. Thank you for all the people in my life, starting from my parents who brought me into this world. Thank you to all my teachers, my gurus who made me who I am today. Thank you to my family, my spouse, my children, my extended family. Thank you to all of these people and all the other people, my staff, all the people who are serving me directly, indirectly. Thank you to all these people because they had so much meaning to my life, and without them, what would I be able to do? So thank you to everybody in my life. हमारे लाइफ में कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं आते. जो भी आते हैं वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आते हैं. Okay, so we need to understand that anybody coming to our life is to teach us something we need to learn from that person. Thank you, God, for all the abundance in my life, right from the house that I live in, to the car that I drive, to the office that I work in, all the money, the bank balance, the savings, the investments, everything that you have given me, हर चीज के लिए thank you. Thank you for all the food, the air, the water, the beautiful nature, the sun, the moon, the mountains, the birds, the trees, the flowers, entire nature which is available to me. Thank you so much for all of this, dear God. Thank you, thank you, thank you. Now we're going to seek forgiveness from God. Okay, dear God, if I have hurt anybody or if I have hurt Mother Nature in any way, knowingly, unknowingly, directly, indirectly, if I have hurt anybody or Mother Nature through my thoughts, words and actions, then please forgive me. क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है. तो प्लीज forgive me. I'm really sorry for what I did. Please forgive me and release me from all those karmas from the past, which is creating a problem in my life today. So visualize करिए कि God is very graceful. You can see a beautiful white shining light, divine light coming from Him and passing through every single cell of our body, through our being, and it is washing away all the old karmas which are creating any problem in our life today. Visualize that this light is covering all your family members, all the people who are there on this session today on Facebook, and covering every single human being on this planet, all the 7 billion people. Visualize that this beautiful white shining light is covering all the living beings, human beings, living beings of the plant kingdom, animal kingdom,
and taking away all the karmas which have created a problem today in our life. Also visualize that there is a beautiful white shining light protecting our entire globe, which is directly coming from God. And this globe is such that no external interference can affect the globe. It is fully protected. And you're once again grateful to God for His divine grace. God is very graceful, always माफ कर देते हैं. किसी इंसान को भी हमने अगर हर्ट किया है तो उसके लिए भी गॉड से माफ़ी मांग लो, उस इंसान से माफ़ी मांग लो. अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो उसको भी माइंड में ला करके उसको भी माफ़ कर दो. बस किसी का भी हर्ट अगर हम अपने अंदर पकड़ के रखें तो वो हमारे वाइब्रेशंस को ज़रूर असर करता है. द फीलिंग ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट, फीलिंग ऑफ revenge, all these things are not good for us at all. So forgive people, seek forgiveness. Wonderful. Now we're going to appreciate all the people who are working day and night for our well-being, the doctors, the nurses, the paramedical staff, all the other workers who are keeping the hospitals clean, the police for managing the roads, all the people who are making sure all the essential supplies are supplied to our homes. इस सारे लोगों को थैंक यू, बिकॉज वो ना होते तो आज हमारी ज़िंदगी कैसी होती. Really appreciating all these people. Send out very powerful positive vibrations to all these people. महसूस करें कि आपके अंदर से एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशन जा रही है इन सबको और उनको भी हील कर रही है. जो बीमार है, जिसके घर में कोई चल बसा हो, वो सारे लोगों को आपके प्रेयर्स की वाइब्रेशंस भेजिए. विजुलाइज करिए कि गॉड की वाइब्रेशंस भी उनको जा रही है और वो लोग पूरी तरह से हील हो रहे हैं. वंडरफुल. नाउ विल डू अ फ्यू एफर्मेशंस. एफर्मेशंस आप अपने मन में बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं, लेकिन पूरे फीलिंग्स के साथ में बोलना है. Because you are in meditation, you may want to speak it slowly, softly, inside or outside, whichever way you prefer. I am safe. I am always safe and divinely protected. I am always safe and divinely protected. My family is always safe and divinely protected. विजुलाइज करिए आपके सारे फैमिली मेम्बर्स पूरी तरह से सेफ है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है. All my loved ones are always safe and divinely protected. It could be your cousins, it could be people in the office. Everybody on this planet, all the 7 billion people are always safe and divinely protected. Visualize करिए कि जो divine light है, it is merging with the coronavirus. You're seeing the coronavirus completely merging with the white light and disappearing into the white light. And the world is completely safe. I know that this is a difficult time, but I have complete faith that this too shall pass. A beautiful world is now in the making. The world that will emerge out of the current situation will be a world which is full of happiness, joy, love, compassion, helping one another. I am always fit and healthy. My immune system is very powerful.
Now we'll do a few visualization. We'll do a visualization. विजुलाइज कि आप अभी अभी सुबह सुबह उठे हो, पूरी तरह से फ्रेश हो, और आप देखते हो कि सुबह हो चुकी है, डोरबेल बजती है, तो आप थोड़े से सरप्राइज हो जाते हो कि सुबह सुबह किसने बेल बजाई, अभी तो कितने दिनों से बेल ही नहीं बजी है। तो आप दरवाजे के पास जाते हो, दरवाज़ा खोलते हो, वहाँ पे न्यूज़पेपर वाला है। न्यूज़पेपर वाला आपको न्यूज़पेपर देता है, हाथ में आप पकड़ते हो, दरवाज़ा बंद करते हो, न्यूज़पेपर लेके आप सोफे पे या कहीं पे बैठते हो आराम से। और जैसे आप खोलते हो न्यूज़पेपर को, आपको हेडलाइंस दिखती है, और हेडलाइंस ये कहती है कि फाइनली द वर्ल्ड इज नाउ बैक टू नॉर्मल। फाइनली द वर्ल्ड इज नाउ बैक टू नॉर्मल। बिग हेडलाइंस, कोरोना वायरस इज कंप्लीटली गॉन। और ये पढ़ के आपको बहुत ही खुशी हुई, और आप न्यूज़ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस अब ख़त्म हो चुका है, इट इज़ गॉन कम्प्लीटली। ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ तो वैक्सीन्स डेवलप हुए, कुछ मेडिसिन डेवलप हुई, साथ साथ में लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ गई। तो सारी चीज़ें मिला करके नाउ द कम्प्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम आवर प्लानट। और ये न्यूज़ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर रहे हो, एवरीबडी इज जंपिंग विद जॉय, फाइनली वील नाउ बी एबल टू गो आउट, गो टू आवर ऑफिस, डू आवर वर्क। And you don't forget to thank God, that thank you God कि we've come back to normal so much faster than we thought. अप्रैल का ही महीना चल रहा है, आपको डेट दिख रही है न्यूज़पेपर के ऊपर कि अभी भी अप्रैल का महीना ही चल रहा है 2020, और आप इसमें से बाहर आ चुके हो। द वर्ल्ड इज बैक टू नॉर्मल। और अब आप खिड़की के बाहर देखते हो तो रास्ते पे वही एनर्जी, वही बज़, लॉट्स ऑफ पीपल गोइंग टूवर्ड्स ऑफिस, एवरीबडी इज़ एक्साइटेड, एवरीबडी इज़ हैप्पी। पूरे बिल्डिंग में न्यूज़ फैल चुका है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ फैल चुका है। तो एवरीबडी इज़ डांसिंग, सिंगिंग, देयर इज़ बेल्स एंड विसल्स, थालियाँ बज रही है। You can hear the entire sound, the reverberation of the sound across the planet. There's such a powerful vibration of 7 billion people. और आप बहुत खुश हो कि आज अभी आप ऑफिस में जा रहे हो, आपके बच्चे भी रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। सब लोग घर से निकलते हैं, और जैसे आप घर से निकलते हो तो जितने भी लोग आपको मिलते हैं, आप देखते हो कि उनके अंदर कितना बदलाव आ चुका है। एवरीबडी इज सो डिफरेंट, एवरीबडी इज मच मोर हैप्पियर, मोर कंपैशनेट, एक दूसरे की खबर ले रहे हैं, हेल्पिंग वन अनदर, एंड यू आर लुकिंग अप इन द स्काई एंड सेइंग थैंक यू सो मच गॉड कि द वर्ल्ड इज सच अ डिफरेंट प्लेस नाउ। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. And you are also grateful once again that we have now emerged as a much more beautiful world. And you see the possibility of Satyug coming back again, where every human being is happy, healthy, peaceful, prosperous, and living a wonderful life for themselves and for others. Wonderful. So now I will count up from 1 to 20, and you will slowly come out of the deeper levels of the alpha state. And at the count of 20, when you open your eyes, you will be completely calm, peaceful, in a very high vibration, ready to go to sleep like a little baby. So come out slowly. 1, 2, 3, coming out slowly. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coming out slowly. 11,
12, 13. At the count of 20, when you open your eyes, you will be completely calm and completely peaceful, in a very high vibration, ready to go to sleep and sleep like a little baby. 14, 15, 16, 17, 18, 19. You may please rub your hands, rub your palms together. Put them on your eyes. And 20. Feel the warmth of your hands on your eyes. And 20. Take your hands off your eyes. And whenever you're ready, you may slowly and gently open your eyes. And as you open your eyes, you're feeling calm, you're feeling peaceful, feeling in a very high, peaceful vibration, ready to go to sleep like a beautiful little baby. Wonderful. Thank you so much, everybody. So I have so many people who have continued till the end. Mayaji says, can we practice this session later if you missed today? Yes, you will have the entire recording on our Facebook page. हमारे सारे जितने भी अभी तक सेशंस हुए हैं सारे रिकॉर्डिंग्स फेसबुक पेज पे है. So how is everybody feeling? Very good. Lakshmi saying thank you. Nishad, thank you. Diksha is saying amazing. Rahul is saying awesome, awesome, awesome. Anand Pathak ji saying thank you so much. Deepak is saying wonderful. Rekha ji is saying feeling very grateful and amazing. Sushant ji is saying thank you, sir. Shaista is saying thank you, sir. Hi, Shaista. Shushmito ji is saying thank you. Wonderful feeling. Great. Ujjwala ji is saying wonderful. Akash ji is saying thank you so much. Wow. Looking at your comments, I'm feeling happy that that the purpose of these sessions is being fulfilled, that each one of you is feeling so great, and we've all sent out a very powerful vibration together. Thank you all for being together in this collective, creating this collective consciousness, creating a very powerful vibration. Today I think the number would have been beyond 50,000. So thank you so much. Ushma is saying amazing, sir, simply awesome, super. वेरी गुड. जो मैंने कहा है अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए वो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए. ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, लव, जॉय, पीस एंड पैशन. वंडरफुल. थैंक यू सो मच. मयूर इज ऑल्सो सेइंग वेरी गुड. गुड थॉट्स आर कमिंग गुड ऑटोमेटिकली. पांडुरंग इज सेइंग so much positivity. Deepak ji is saying I appreciate your mission. Very good. This is so overwhelming. Very nice. Thank you so much. Pratik ji, I've already sent the links for the prayer of mind. It is there on the Facebook page itself. हमने Google link भेजा है. उस Google link से आप पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज़. Very good, Padmaja. Feeling peaceful. Good night to Jalaj. Very good. So the prayer is there on our Facebook page. All our audios are there, like I explained yesterday. So anybody here who has been able to download from the Facebook page, if anybody can confirm, so I know it is definitely there and you are able to download.
So there is a link of the Google Drive on the Facebook page. उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं. Okay, thank you, Vipin ji. Very good. Wish you all the best, guys, and I will see you tomorrow at 9:30. And lots to share. And please don't forget, we are going to launch our Mind Power Online workshop on 9th of April. So it will be done on 4 days for 4 hours each. So it will be from 9 to 1 o'clock, 9th, 10th, 11th and 12th of April. Okay, I'm going to send all the details on the Facebook page. और आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं. आप अपने आप को करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू टू डू दिस प्रोग्राम. And it's at a very reasonable cost so that maximum people can take benefit. Okay, Mishali, yes, we'll give you the link. We're going to send it on the WhatsApp groups also, and we'll also put it on the Facebook. Okay, thank you. I will let you all go now and take a nice sleep. It's almost 11 o'clock. Wish you all the best and God bless you. Bye bye. All the best. Bye bye.